जो अपन बात कर रहे हैं about online and offline, there's certain things that you can't replace in offline. Like it has to be offline, and especially for certain disciplines. You know, when it comes to management like IIMs or any of these which are more to do with the managerial and top level, this thing, that is for increasing their own kind of knowledge in particular after you've already attained a certain. So if I want to, like, if I've already studied in, I've already got my basic knowledge in practical knowledge, and I've gone through my internships, I've gone through my all that has been cleared, and then I want to get extra knowledge of a particular thing. For those kind of courses, I think an online is absolutely fine. But when it comes to your basic study and when it comes to your, especially your first degree, I think that stage and offline, along with a little bit of online mode, like you can have certain classes or certain experts talking to you from the industry and so on, who we call otherwise, for our classes. I think that part could be handled online, but somewhere down the line, I think let's just keep a positive that even this time will pass, and I'm sure we'll all get back to our normal routines and being more empowered with technology. I think let's take it in that spirit and move forward. Yeah, we have two questions together, so we can answer them together. All four of you ask your questions. So, sir, there is a very famous quote which says, technology that brings us closer to people who are far away, takes us far away from people who are actually close. So, how do you see the digital divide in the country currently? Because right now the internet, everything is about internet, and digital divide is increasing. With digital divide increasing, brain drain is increasing. Dropout rates are increasing. So, do you see this pandemic as an opportunity where our technology can catch up to technology from Japan, where education could be done online? मुझे लॉस इसलिए नहीं लगता है क्योंकि भारत की संस्कृति ये है कि हर दिशा से हमको उच्च विचार, उच्च ज्ञान प्राप्त हो, ये हमारी संस्कृति है। जिसके पास जो अच्छा है, उसके पास से वो स्वीकार करना और उसके अनुरूप अपने आप को बनाना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये टेक्नोलॉजी जो है, ये नुकसान भी करती है, पर नुकसान से इसका फायदा ज़्यादा है और विष और अमृत दोनों हमारे सामने पड़े हैं। वी हैव टू डिसाइड कि हमें अमृत लेना है कि विष लेना है। जो गलत है उसको छोड़ के जो अच्छा है उसको हम एक्सेप्ट करें। जो बंदर होता है ना, उसको आप 2 केले दो, एक थोड़ा सड़ा हुआ केला दोगे, एक अच्छा केला दोगे, तो उसको भी समझ है कि ये सड़ा हुआ है, काम का नहीं, वो फेंक देगा, अच्छा वाला खाएगा। वो हमारे पूर्वज थे, उनसे तो हम सीखें कि कम से कम जो अच्छा है वही हमें ग्रहण करना है। हम खरीदने के लिए कुछ चीज जाते हैं, 2 खराब चीजें पड़ी है, 2 अच्छी चीजें पड़ी है, हम अच्छी ही लेंगे ना, खराब क्यों लेंगे। तो टेक्नोलॉजी का जो नुकसान करने वाला पार्ट है उसको छोड़ के जो अच्छा वाला पार्ट है उसको एडॉप्ट करके आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। Kaushik, hold the mic closer to you. But how do you see more students getting? That's what I was talking about, digital divide. मतलब किसी के पास इंटरनेट है, किसी के पास इंटरनेट नहीं है. So does the government need to think about new policies? Like we have a new education minister, Dharmendra Pradhan. So does the government need to think about more such policies than going to materialistic? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कौशिक कि जिस प्रकार से अच्छा हवा पानी ये नागरिकों का मूलभूत अधिकार माना गया है, अब ऐसा समय है कि फ्री एंड फास्ट इंटरनेट ये भी नागरिकों का मूलभूत अधिकार बनने जा रहा है। जियो ने शुरुआत की है, अब जियो जो है ये आपको एडिक्ट कर रहा है, धीरे धीरे वो अपना रेट बढ़ाएगा, वो बिजनेस वाला आदमी है, पर कहीं ना कहीं सरकार को इसको रेगुलेट करके सबके लिए अवेलेबल कराना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। और वो समय आएगा, क्योंकि होता क्या है, जो सरकार में बैठे हैं उनको इलेक्शन लड़के सरकार बनानी है। इलेक्शन लड़ेंगे तो जीतेंगे कैसे? पब्लिक खुश होगी। पब्लिक खुश कब होगी? जब पब्लिक को जो चाहिए वो देंगे। अब पब्लिक को फ्री इंटरनेट चाहिए, फास्ट इंटरनेट चाहिए, तो सरकार को देना ही पड़ेगा। तो ये अपने आप उनकी जरूरत के कारण भी अवेलेबल हो जाएगा, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। इट विल बी डन। Question is, there are a lot of things going on right now, but the main thing is environmental impact. Due to this lockdown, we have reduced the carbon footprints right now. There is a huge impact on climate change, right? So, but at the second hand, we are having economical impact also. There are a lot of businesses running around the colleges. They are totally zero due to
this lockdown. Uh, do colleges are working on climate change and this economical problem? Like we can solve this both problems at this. दोनों प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व हो सकते हैं, पर यानी ये उतना रिलेवेंट नहीं है, फिर भी वी कैन नॉट प्रे कि एनवायरनमेंट अच्छा उसके लिए वापस लॉकडाउन हो जाए। यानी लॉकडाउन के कारण एनवायरनमेंट में जितना फायदा है उतना इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट जो है वो खराब हो रहा है। तो दुनिया जो चलती है वो इकोनॉमी से चलती है, दुनिया चलती है वो सिर्फ एनवायरनमेंट पे नहीं चलती है। इसीलिए हम इकोनॉमी को चलाते हुए जो एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है उसको कैसे कम कर सके। मान लीजिए यहाँ पे इतना अच्छा बिल्डिंग है, पर वो बिल्डिंग में इतने सारे पेड़ भी है ना, तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ कैसे लगाएं, हम कचरा कम कैसे करें, हम एनवायरनमेंट को जो भी नुकसान होता है, मान लीजिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना है, उसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कैसे करें, पानी उसको अच्छा कैसे रख पाए। जब हम जाते हैं अहमदाबाद तो साबरमती में जो इंडस्ट्रीज का पानी छूटता है, आप मातर के पास से निकलोगे आपको पता चलेगा कि वो पानी, वो कौवा बिरयानी वाली एक मूवी थी ना, उसमें जिस आदमी को जमुना में डुबाया जाता है, उससे गंदा पानी यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। यानी वो जो सिचुएशन है उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम रूटीन में, नॉर्मल लाइफ में एनवायरनमेंट को कितना प्रोटेक्ट कर पाए और एनवायरनमेंट को कितना बेहतर कर पाए। इट इज अ मैटर ऑफ बैलेंसिंग, बट बैलेंसिंग में हमें ज्यादा काम कर, हम ये क्या है, हम सो रहे हैं और किसी ने हमको खाना दे दिया, हमको कितना अच्छा लगा, बिना मेहनत के खाना मिला। लॉकडाउन में पूरी दुनिया सो रही थी और एनवायरनमेंट अच्छा हुआ, हमको बहुत अच्छा लगा, फोटोज आ रहे थे कि यहाँ से ये दिख रहा है, वहां से वो दिख रहा है, ये पटियाला से हिमालय दिख रहा है। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। यानी ये लॉकडाउन हुआ तो देखने को मिला, पर हम कितना भी मेहनत करेंगे 50 साल में भी पटियाला से हिमालय वापस विदाउट लॉकडाउन नहीं दिखेगा। तो उसकी दिशा में हम कैसे मेहनत करें, और उसके लिए मेरा जो हमेशा शब्द रहता है, दैट इज इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी कैन नॉट एंड वी शुड नॉट रिलाई ऑन सरकार, we cannot and we should not rely on NGOs and companies, corporates. We should rely on ourselves. हमें अपने आप के ऊपर आधारित रहना है। हम एनवायरनमेंट का कितना कम नुकसान करते हैं, इसके ऊपर इसका भविष्य निर्भर है, ऐसा मुझे लगता है। Out of time, so all I can do is request you to please ask your questions together. You ask, and then sir will answer. So please just make it very quick. Hello sir, my name is Shlok. I'm from Faculty of Journalism and Communication. So my question is, there are a lot of students basically in the 12th standard who chooses their subject according to what marks they get in the subject. So if I'm particularly weak, so I'm from a commerce background. So if I'm particularly weak in accounts, I would not prefer to go in BCom and opt that as a subject. So मैंने decide किया कि okay, I'm weak at accounts, but I'm good at economics and BO, so I'll be good at the field of journalism and mass communication. So what has the university done for it? So university is doing that career fair used to do that career fair every year, जहाँ पे students आ सकते हैं, they can choose what faculty they have to go and what course they want to opt. So what university has done for this particular thing, for this year when everything is online? Right. One more question we'll take. We'll take 3 questions together. Hello everyone, myself Kanishka Sharma from Faculty of Social Work. I wanted to ask, as you said before, कि scholarships are given on the basis of criteria and seeing their financial conditions. So as nowadays there are online modes, online classes. So the students जिनके पास financial condition इतनी अच्छी नहीं है and they don't have phones, smartphones and laptops, what about them? One last question. Good morning, sir. My name is Kushi and I'm from Faculty of Journalism and Communication. So my question is that, before we adapted to this new normal, universities used to take this on entrance examinations, right? And for certain electives like us, journalism and communication, we used to have a very competitive exam for our entrance. So this year we actually shifted to online modes. So what I believe is that the essence of actual entrance examinations has totally gone. Like admissions have become easier for students. So I just feel kind of that can we do something about entrance examinations that they can be conducted offline rather than online? You want the entrance exams to be more difficult for them? Yes, sir. I want them to be difficult for them. I want them to be competitive so that if there's one fair chance for each and every
ठीक है। श्लोक का जो सवाल था, श्लोक ऐसा है कि अपना यूनिवर्सिटी का हेल्थ सेंटर है, आप यहाँ से आगे जाते हैं ना, इसी लाइन में आगे हेल्थ सेंटर है। हेल्थ सेंटर पे मार्ग नाम का एक काउंसलिंग सेंटर है कैरियर काउंसलिंग के लिए, और डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी के हमारे रिटायर्ड टीचर्स और कुछ वॉलंटियर्स हैं, वो वहाँ पे बच्चों का साइकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं। उससे बच्चे का किस सब्जेक्ट में उसकी रुचि है, एक्सपर्टाइज है, उसको समझ के उसको गाइड करते हैं कि आपको इस फील्ड में जाना चाहिए। एक ऐसा टेस्ट हम डिजाइन कर रहे हैं, इट मे टेक अराउंड 6 to 8 months, बट जो भी न्यूली एडमिटेड या जो बच्चे ऐसे हैं जो नया एडमिशन लेना चाहते हैं, उन सभी का हम इस प्रकार का एक कॉमन टेस्ट कंडक्ट करना चाहते हैं, जिससे बच्चे का इंटरेस्ट और उसकी एक्सपर्टाइज के आधार पे उसको कैरियर चूज करने के लिए गाइडेंस मिले। अभी ये ऐसा है कि ये मंदिर में आप जाओगे तो प्रसाद मिलेगा, हम ऐसा करना चाहते हैं कि आपको खाना है कि नहीं खाना है, प्रसाद खाना ही पड़ेगा। ऐसा करके सबका टेस्ट करने का प्रयास करेंगे। इट मे टेक टाइम, 6 से 8 महीने। एक एजेंसी है जिन्होंने ये सजेस्ट किया है, तो आप जो कहते हैं आई कंप्लीटली एग्री विद इट। मैं 10th में 61% लेके आया था। हमारे टाइम पे 11th 12th साइंस कॉमर्स आर्ट्स सिलेक्ट करना होता था। मुझे साइंस में जाना था, उस समय मैंने एडमिशन ले भी लिया था, एंड माय अंकल यूज्ड टू काउंसिल मी। उन्होंने 3 दिन तक मुझे काउंसलिंग किया और मुझे समझाया कि भाई अपना जन्म साइंस के लिए नहीं हुआ है। देन आई चूज कॉमर्स, और साइंस में गया होता तो मैं मजबूती से 2-3 बार 12th में रिपीट होके फिर शायद कॉमर्स में हार के आया होता। उससे अच्छा है मैंने 11th से कॉमर्स ले ली। तो ये इंटरेस्ट और एक्सपर्टाइज के आधार पे होना चाहिए, उसके लिए एक व्यवस्था है, आगे की व्यवस्था हम कर रहे हैं। आपका जो सवाल था उसमें ऐसा है कि आज के समय में यूनिवर्सिटी में पढ़ते बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है तो वो एलियन ही माने जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। फिर भी अगर कोई ऐसे बच्चे हैं तो आप बताइए, उसकी व्यवस्था करेंगे। एज ए यूनिवर्सिटी हम इसकी व्यवस्था नहीं करते, बट सरकार ने उसकी व्यवस्था की है। सरकार ने क्या व्यवस्था की है, आप 900 रुपए भरिए और आपको एक टैबलेट दिया जाता है। वो टैबलेट की मार्केट प्राइस ये 14,000 रुपए है। सैमसंग कंपनी का सैमसंग ने लिनोवो का टैबलेट दिया जाता है। पहले सैमसंग पास हुआ था, फिर सैमसंग में कुछ टेक्निकल फॉल्ट आया, तो आप 1000 रुपए, 900 रुपए, 1000 रुपए, 900 थे अब 1000 रुपए, शायद आप 1000 रुपए भरो। अब 1000 रुपए कोई बच्चा अफोर्ड ना कर पाए, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, फिर भी ऐसा कुछ है तो आप भेजो, उसकी व्यवस्था करा देंगे। तो सरकार ने 1000 रुपए में स्मार्ट टैबलेट देने की व्यवस्था करी है, और वो कितने भी बच्चे, यानी जो भी बच्चा फर्स्ट ईयर में एडमिट होता है उसको वो टैबलेट मिलता है। तो ये एक व्यवस्था है। जहां तक आपका सवाल है सिंडिकेट की इंटरनल मैटर, उसको यहाँ पे डिस्कस करना ठीक नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्रॉम लास्ट 3 years आई वॉज द पर्सन हु इज फाइटिंग फॉर मिनिमल ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट वाला एंट्रेंस टेस्ट। यानी होता क्या है, मान लीजिए MHRM है, MSW है, BBA है, इनमें बच्चों के इंटरव्यूज होते हैं। अब इंटरव्यू में क्या होता है कि एज ए टीचर अगर मैं वहां पे इंटरव्यू लेने के लिए बैठा हूं तो मैं भी इंसान हूं ना, मुझे अंकित मुझे अच्छा लगेगा, धनंजय मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं अंकित को 2 मार्क्स ज्यादा दूंगा, धनंजय को 2 मार्क्स कम दूंगा। ऐसा ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट से हो सकता है। दूसरा, इंटरव्यू में अलग अलग पैनल होती है, एक साथ 10 पैनल बैठी है, 10 पैनल में बैठने वाले हर व्यक्ति, उनका दिमाग एक समान नहीं होगा, हर व्यक्ति के सवाल एक समान नहीं होंगे। मैंने आपको 50 में से 45 दिए और अंजलि मैम ने दूसरे किसी व्यक्ति को 50 में से 35 दिए। हो सकता है कि उन्होंने 50 में से 35 जिसको दिए हैं वो व्यक्ति ज्यादा अकल वाला हो, और मैंने आपको दिए हैं, आप उनसे शायद कम हो। ऐसा हो सकता है, मैं कहता नहीं हूं कि ऐसा है, पर ऐसा हो सकता है, एग्जाम्पल है। तो इसमें मान लीजिए MBBS का जो एडमिशन है वो सिर्फ रिटन टेस्ट पे हो सकता है। जो सीमेट आता है MBA का एडमिशन, वो इससे हो सकता है। टेक्नोलॉजी, फार्मेसी, उसका एडमिशन इससे हो सकता है। तो विदाउट इंटरव्यू, विदाउट GDPI, सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम के आधार पे एडमिशन प्रोसेस क्यों नहीं हो सकता जो कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट हो। यानी आप एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस देते हैं, 5 बजे एग्जाम खत्म हो, 6 बजे हम रिजल्ट डिक्लेयर क्यों नहीं कर सकते? आपने क्या आंसर दिए हैं वो हम अपलोड क्यों नहीं कर सकते? तो हम उस सिस्टम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इस बार पहली बार ऐसा डिसाइड हुआ है, नो GD नो PI। हम एंट्रेंस एग्जाम उतनी स्ट्रिक्ट करेंगे। अब 10 पेपर बनाओ, 10 पेपर में MCQ के आधार पे आप जो चाहे वो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव की कोई जरूरत नहीं होती, MCQ के आधार पे हो ही सकता है। तो MCQ के आधार पे आप जितनी स्ट्रिक्ट एग्जाम कर सकते हैं करिए। और अब जब सरकार ने छूट दे दी है तो सरकार ने उसमें ये चीज भी लिखी है
कि एंट्रेंस एग्जाम जो है वो आप ऑफलाइन कंडक्ट कर सकते हैं, तो हम एंट्रेंस एग्जाम ऑफलाइन ही कंडक्ट करने वाले हैं। पिछले वर्ष स्थिति ऐसी थी कि हम नहीं कर पाए, तो पिछले वर्ष जो बच्चे थे वो नसीब लेके जन्मे होंगे कि उनका थोड़ा इजी रहा। इस बार के बच्चे सबसे टफ एग्जाम फेस करेंगे ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि इसके पीछे मैं खुद लगा हुआ हूँ। मैं ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट को मिनिमाइज करना चाहता हूँ और सिंडिकेट में पिछले 1.5 साल से मैं लड़ रहा हूँ। इस बार हमारे पास रिजोल्यूशन हुआ है सिंडिकेट में कि कोई ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट वाला टेस्ट नहीं रखना है, पूरा टेस्ट उस प्रकार से रखना है जिसके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके, और हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। Right. Thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, each one of you. We hope to see you all again in our next discussions. So, as the government has finally, after such a long time, declared that now the colleges and schools will be allowed to reopen with 50% of capacity. Now, all we have to see is how much welcoming this decision is going to be from the educator side and from the students' point of view as well. And we hope that this discussion, this particular open forum that we had was a fruitful one, and we expect on having a lot more town halls and open forums like this. So to get in touch with us or to be a part of our next open forum, the city makes sure that you DM us or you write down your questions in the comment section that we have, or you contact us on the number that we have given below. So with this and a lot more that you need to know, make sure that you stay tuned to Rashtram, where nation matters. Thank you.